Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the course of Development Planning and Administration, MPA 403, and today is lecture number 28. And I'm your facilitator, Professor Dr. Muhammad Majid Mahmood Pagram. So as you know that next lecture के ऊपर आने से पहले we need to discuss कि हमने पिछले lecture में क्या बात की थी. Okay, in our previous lecture we have talked about like for example different like role of like planning and administration in any organization हमने बात की, and we have discussed like different examples with the help of different examples from public and private sector of Pakistan. हमने देखा कि किसी भी इदारे की परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि they need to focus more on like developing most efficient and effective plans. हमने different प्लान्स के डिफरेंट चैलेंजेस थे उनको हमने डिस्कस किया और उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज. पर्टिकुलरली जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की कि हाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. जब हम बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे जहन में आती है कि हाउ टू कन्विंस द अदर पर्सन. नाउ with the help of effective communication skills, we can like use different techniques and methods to convince the other person. Now, हमने पिछले lecture में बात की कि like for example, if you have strong communication skills, there are more chances that you are able to convince or persuade the other person, group or organization. But if you have poor communication skills, then definitely you will face more problems, and there are of course chances कि आप अपनी targets को achieve ना कर सकें. Particularly जब हम बात करते हैं written communication की, oral communication की, तो जब हम बात करते हैं planners की तो they need to write plans, and जो plans जो हैं वो documentations में जब उनको लिखा जाता है तो written communication skills are really very important. ख़ास तौर पे जब हम plans के objectives की बात करते हैं, उसकी implementation की बात करते हैं, उसके feedback की बात करते हैं, and then जब हम बात करते हैं कि how to like prepare plans, तो शुरू में initial stage में you need to get the feedback. Now in order to make effective plans, this is really very important कि आप feedback लें. Now feedback आपने लेना है, for example आप सबसे पहले तो अपने employees से feedback आपने लेना है, जितने आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपके शेयर होल्डर्स हैं, उनसे आपने फीडबैक लेना है, और बेस्ड ऑन द फीडबैक देन यू ऑफ कोर्स डेवलप योर प्लान्स. सो जब हम बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की तो गेटिंग फीडबैक फ्रॉम लाइक डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वन मेजर पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की कि किसी भी लाइक फॉर एग्जांपल मीटिंग में जो मीटिंग पार्टिसिपेंट्स हैं, अक्सर ये देखने में आया पर्टिकुलरली इन पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान कि ज़्यादातर मीटिंग्स में जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे डू नॉट टॉक. नाउ दिस इज अ बिग unfortunate thing that people do not participate. So what are the root causes? Why people do not participate? तो इनको हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, and then we made certain recommendations. Like for example, the most important recommendation we discussed is we need to involve people. We need to give them a sense of ownership. So how we can do this thing? So जब तक हम उनको अथॉरिटी पार्ट डेलीगेट नहीं करेंगे, हम उनको डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बनाएंगे, जब तक उनको वैल्यू नहीं देंगे, उनको रिकग्निशन नहीं देंगे, उस वक्त तक एम्प्लॉइज जो हैं अपना बेहतर रोल अदा करने के लिए तैयार नहीं होंगे. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम
कोई चेंजेस लेके आ रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं, कोई नया काम करना चाह रहे हैं या पहले वाले कामों को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो वी नीड टू हैव प्लान्स फॉर फ्यूचर। ना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स they are more concerned with like implementation part and then controlling part in an organization. तो उसके लिए definitely they need to communicate with the like employees and other concerned people. So overall in nutshell हमने अपने previous lecture में communication की और प्लानर्स और एडमिनिस्ट्रेटर के एक रिलेशनशिप को उसके ऊपर हमने डिस्कस किया, एंड विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स वी कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. नाउ वी मूव ऑन टू आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन, एंड दैट इज इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड डाइवर्सिटी on effective planning and administrations. Now let's have a quick look at it, that what is personality? Now personality means the totality of an individual's attitudes, values, interests, behavioral patterns, emotional responses and social roles. Now you see that it includes almost everything. Now starting from the attitudes. So जब हम कहते हैं कि ये इन तमाम चीज़ों को मिला के एक आपकी पर्सनालिटी बनती है, and the most important and the number one factor is of attitude. So what do we mean by attitude? Your perception, the way you think. जो आपके दिमाग के अंदर जो आपकी सोच है, that is your attitude. किसी चीज के बारे में जो आपकी नीयत है, that is your attitude. Values, like individuals, जब हम बात करते हैं individuals working in different organizations, they value things differently. जैसे for example, some individuals they are task oriented, and some individuals in organizations they are more quality conscious. So the values are different. Some people they work for money, and some people they work for quality. Some people they want to contribute something in the society, and there are some individuals who are just like working for their personal gains. So people have different values, interests. Now interest is the motivation thing, motivational factor, like the willingness part, कि आप किसी चीज में कितने इंटरेस्टेड हैं, आपकी कितनी विलिंगनेस है उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड योर इंटरेस्ट. एंड देन बिहेवियरल पैटर्न्स, कि आपका बिहेवियर जो है उसका किस पैटर्न पे आपका बिहेवियर है. लाइक फॉर एग्जांपल जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो योर एक्शन पार्ट, जो बॉडी लैंग्वेज, जो oral and written communication, that is your behavior. Emotional responses, how do you respond emotionally? So do you have like high emotional responses or medium or low emotional responses? So people vary in their emotional responses in one situation. And social roles, कि इस सोसाइटी में कल्चर में आप अपने रोल आपका क्या है, आप रोल को कितना रियलाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप एक्सेप्ट करते हैं जो कि इस सोसाइटी में आपकी है. तो इन तमाम फैक्टर्स को जब हम इकट्ठा कर लें तो दिस इज कॉल्ड पर्सनैलिटी. नाउ पर्सनैलिटी इज ऑल अबाउट public speaking. Now what is public speaking? Now public speaking means कि जब आप आम पब्लिक में लोगों के सामने बात करते हैं. Now like for example आप मार्केट जाते हैं, आप लोगों से कैसे बात करते हैं, आप कहीं सैर करने के लिए किसी पार्क में जाते हैं फैमिली के साथ, आप लोगों से कैसे बात करते हैं, आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं, आप कैसे बातचीत करते हैं दुकानदार से, रिटेलर से, आप
आम लोगों से कैसे बात करते हैं, आप जानने वालों से कैसे बात करते हैं, फ्रेंड्स से कैसे बात करते हैं, फैमिली मेंबर से आप कैसे बात करते हैं। तो इसमें जो आपकी लोगों के साथ जो स्पीकिंग का जो तरीक़ेकार है, दैट इज आल्सो दैट शोज योर पर्सनैलिटी। बॉडी लैंग्वेज, ओके, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, डू यू लुक लेजी और एक्टिव। लाइक जब आपको लोग देखते हैं तो आपको लेजी समझते हैं, आपको एक्टिव समझते हैं। ऑफ कोर्स द वे यू सिट, द वे यू स्टैंड, द वे यू वॉक, योर आई contact, your facial expressions. So everything is showing that how active or how lazy or how slow you are. So in communication we say that 65 to 70% of our communication is of body language. So we need to pay more attention towards our body language. और जिन लोगों की जैसे हम बात करते हैं कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तो न सिर्फ ये है कि उनकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसके साथ साथ वो अपनी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ख्याल करते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का, अपने आई कांटेक्ट का, अपने ड्रेस का, बिहेवियर। ना जब हम बिहेवियर की बात करते हैं कि आपके एक्शंस कैसे हैं, आपकी लोगों के साथ डीलिंग कैसी है आपकी, तो दिस इज कॉल्ड बिहेवियर। एंड देन एंगर मैनेजमेंट। और एंगर के बारे में अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि एंगर और डेंजर में सिर्फ डी का फर्क है। सो व्हेन यू गेट एंग्री, सो इट बिकम्स रियली डेंजरस। सो एंगर मैनेजमेंट आपकी कैसी है? क्या आप फौरन गुस्से में आ जाते हैं? क्या आप आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में आते हैं? क्या आप गुस्से में आते हैं तो फिर आपको कूल डाउन होने में बहुत टाइम लगता है, या आपको गुस्सा आते ही जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी खत्म हो जाता है? तो आपकी एंगर मैनेजमेंट किस तरह की है? क्या आप अपने एंगर को कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं कर पाते? दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। सो पीपल who can manage their anger, they are wonderful people having wonderful personality. और जो लोग अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकते, they are unfit for the top level positions. क्योंकि जब आप टॉप लेवल में आते हैं, आप एक इदारे को हेड कर रहे हैं, आप एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, तो यू हैव फॉलोअर्स, यू हैव टीम मेंबर्स। और अगर आप अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप एक पूरी टीम को मैनेज कर सकें, एक पूरे इदारे को आप मैनेज कर सकें? सो एंगर मैनेजमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट with respect to, of course, your work and with respect to your personality as well. Physical fitness, of course, अगर आप बहुत आपकी फिटनेस अगर बहुत अच्छी फिटनेस है आपकी फिजिकल, तो people appreciate and they give your examples कि जी इन साहब को देखें कि इनकी फिजिकल फिटनेस बहुत स्ट्रांग है। और जितने ज्यादा आप फिजिकली फिट होंगे, इतने ही लोग आपकी तारीफ करेंगे आपकी पर्सनालिटी की। और जितने ही लोग अक्सर एक मिसकंसेप्शन है कि जो लोग बहुत फैटी होते हैं उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, और जो लोग स्लिम होते हैं उनको डाइट्स की और उनको एक्सरसाइज की उतनी जरूरत नहीं है। I disagree, because फिजिकल फिटनेस का ताल्लुक स्लिम होने से या फैटी होने से नहीं है। फिजिकल फिटनेस का ताल्लुक ये है कि आपकी कोई भी एज है, आपका चाहे कितना भी वेट हो, कम हो, ज्यादा हो, यू नीड ऑफ मेल और फीमेल, फिजिकल फिटनेस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए उनकी मेंटल फिटनेस जो है वो भी स्ट्रांग होती है फिजिकल फिटनेस के साथ। हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, तो वो अच्छे परफॉर्मर्स हैं। वो अपने एंगर को भी कंट्रोल करते हैं। उनकी ओवरऑल एक पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है उनकी हेल्थ, उनका जो हेल्थ है, उनकी जो फिटनेस है, उनके हर एक्शन से रिफ्लेक्ट हो रही है, इवन उनकी बॉडी लैंग्वेज से रिफ्लेक्ट हो रही है।
So this is really, or I believe that one of the most important area is the physical fitness, then food habits. Of course, nutrition, आपका डाइट प्लान क्या है, आप जितने ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने डाइट प्लान को फोकस करेंगे। ये तो नहीं है कि आप हर वक्त आप मीठा खाते रहते हैं या हर वक्त आप मुर्रगन किस्म की ग़िज़ाएं खाते रहते हैं, हर वक्त अगर आप फास्ट फूड जाते रहते हैं, आप लाइक यू नो, तो वी नीड टू हैव ए बैलेंस। इंटरनेट के ऊपर बहुत आसानी से आप डाइट प्लान्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप देखें कि दुनिया के जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक डाइट प्लान, एक फूड प्लान क्या दिया हुआ है, तो उसके मुताबिक आप अपनी फूड हैबिट्स को डेवलप करें एंड दैट ऑफ कोर्स strengthens your personality. Friends making skills, very important. कुछ लोग मैंने देखा कि वो जैसे कोई पार्टी है या कोई फंक्शन है या गेट टुगेदर है तो वह कोने में जाके बैठ जाते हैं। तो क्या आप इस तरह की पर्सनालिटी बनना चाह रहे हैं या आपके अंदर फ्रेंड्स मेकिंग स्किल्स हैं? तो डेफिनेटली जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, जो अलग थलग रहना पसंद करते हैं, जो लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, तो वो जिंदगी की दौड़ में काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो वैसे भी डेफिनेटली हम लोगों से मिलेंगे तो हमें नए आइडियाज़ पता चलेंगे, हमें नई बातों का पता चलेगा, हमारी नॉलेज अपडेट होगी, हमारा एक्सपोजर ज़्यादा होगा। एंड डेफिनेटली जब आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और आपकी फ्रेंड्स मेकिंग स्किल्स हैं तो इट आल्सो मीन्स के यू अंडरस्टैंड अदर्स वेल। तो जो लोग दूसरों को बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं तो वो तभी मुमकिन है कि व्हेन दे हैव दैट सोशलाइजेशन स्किल, रिलेशनशिप स्किल्स। तो ना सिर्फ ये कि आप फ्रेंड मेकिंग आपकी स्किल हो, बल्कि आप एक स्टेप आगे जाएं एंड यू नीड टू मूव टुवर्ड्स बिल्डिंग relationships. I always say one thing, the real meanings of words are not in words. The real meanings of words are in the relationships. जितने रिलेशनशिप हमारे स्ट्रांग होंगे उतने ही वर्ड्स के मीनिंग्स हमारे लिए मीनिंगफुल होंगे, और जितने हमारे रिलेशनशिप वीक होंगे उतने ही वर्ड्स के मीनिंग लेस होते चले जाते हैं। सो जितना हम रिलेशंस को अपने ऑफिस में अपने कॉलीग्स के साथ, अपने जूनियर सीनियर के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग करेंगे उतना ही अपनी ज़िंदगी में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। एंड जिन लोगों की फ्रेंड मेकिंग स्किल और रिलेशनशिप स्किल स्ट्रांग होती हैं दे एंजॉय अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। लर्निंग स्किल्स, क्या आप नई नई चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, लर्न करने का, क्या आपके अंदर एक मोटिवेशन होती है कि कुछ नया सीखा जाए, कुछ नया किया जाए, और जो चीज़ आपको पहले से आती है उसको अपडेट किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। पीपल हु हैव लर्निंग स्किल्स they have good personalities. And finally, dealing with problems. How you deal with problems? So people having good decision making skills, good problem solving skills, good analytical skills, they are more able to solve or manage problems. So problem के बारे में यहाँ पे ये कहता चलूं कि problem is not a problem. Problem is actually an opportunity. तो प्रॉब्लम को एज ए अपॉर्चुनिटी आप लेंगे, प्रॉब्लम को एज ए प्रॉब्लम आप नहीं लेंगे, पहली बात। इफ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी तो प्रॉब्लम को एज ए चैलेंज आपने लेना है, प्रॉब्लम को एज ए अपॉर्चुनिटी आपने लेना है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल मैग्नेटिज्म, कि पर्सनालिटी को आप पर्सनल मैग्नेटिज्म कह सकते हैं
कि आपकी पर्सनालिटी जो है उसमें कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है. So anybody who is interested to improve his or her personality, all of these factors can help you improve your personality and strengthen your personality characteristics. Now talking about perception versus reality, what matters most is how you see yourself. Now this is really very important. I always say one thing: if you think you can, you can, and if you think you can't, you can't. So the most important thing is how you see yourself. If you see yourself as a lazy person, you will remain a lazy person. If you perceive that you are the most active person on earth, you will become the most active person on earth. If you perceive that I can do this thing easily, believe me, inshallah, you will be able to do that thing easily. So it all depends on your perception. So in order to be successful in your organization, in order to be successful in your life, the most important thing is we need to improve our perceptions. People having strong perceptions, they have wonderful personality. They have wonderful performance. They set the benchmarks in the world. And people having poor perceptions, they go on the negative side, they go on the decline side. Now talking about negative emotions, it creates stress and fear most of the time. Now what is meant by stress? आपको कभी स्ट्रेस हुई? Okay. According to research, having stress is a natural phenomenon. So people without stress, it means that they lack something. But when we talk about stress, there are 3 levels. We have the high stress, we have the moderate stress, and we have the low level stress. So according to research, moderate stress is highly recommended. Now when we talk about low stress, it means that people who are careless, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी होता रहे ऑफिस में, घर में, they don't care. High stress, now these are the people who who always take things extremely seriously. Like एक काम अगर उनको नहीं आता तो दूसरे काम जो उनको आते हैं वो भी उनको भूल जाते हैं. तो जब हम स्ट्रेस की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन को देखते हैं, तो स्ट्रेस मीन्स when you perceive that you are unable to manage the situation, और जो सिचुएशन आपके लिए जितनी ज्यादा वैल्यूएबल होगी उतनी ही ज्यादा आपको स्ट्रेस होगी, और वो सिचुएशन आपके लिए जितनी कम वैल्यूएबल होगी उतनी ही आपको कम स्ट्रेस होगी. सो स्ट्रेस सिर्फ ये नहीं है कि आपको किसी डर खौफ से हो रही है. स्ट्रेस आपको खुशी में भी हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ का इनाम निकल आए, लाइक इनामी बॉन्ड जैसे हम कहते हैं, तो एकदम उसको बताना काफी खतरे वाली बात है, अगर खास तौर पे अगर उस पर्सन की एज ज्यादा है. तो एक बहुत एक्सट्रीम एक्साइटमेंट भी जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके लिए. तो पीपल हु आर वाइज,
people who have wisdom, people who are good critical thinkers. They try to maintain the moderate level of stress. And then talking about fear. Negative emotions create fear. You have a fear of the unknown, you have uncertainty and things like that. आपको डर सा लगा रहता है. तो जब हम बात करते हैं कि कुछ लोगों की ऐसी पर्सनालिटी होती है, दे आर नेगेटिव इमोशंस, जिसकी वजह से उनको फियर भी है, उनको स्ट्रेस भी है, और जिसकी वजह से अपना काम जो है वो बेहतर तरह परफॉर्म नहीं कर पाते. Now talking about the positive attitude, how much do you see of an iceberg? Let's look at this iceberg. आपको कितना iceberg नजर आ रहा है? And now you see this picture. Only 10% of any iceberg is visible. The remaining 90% is below sea level. Now, this is really wonderful example. I must say that when we talk about attitude. So we see only 10% of iceberg and 90% is below sea level, we can't see. Now the iceberg phenomena is also applicable on human beings. When we talk about knowledge and skills of humans, like only up to 10% is known to others, whereas unknown to others is almost 90%. Now, it means that the attitude is hidden. Now, make your life 100%. Let's see how. Let each letter of the alphabetic has a value equal to its sequence in alphabetical order. Like A equals 1 and B equal 2 and C equal 3 till Z equal 26. Now let's have a look at it. Skills. S has a value of 19, K has a value of 11, I has a value of 9, L has a value of 12, again L has a value of 12, and S has a value of 19. When you total, it is 82. Knowledge. K has a value of 11, N has a value of 14, O has a value of 15, W has a value of 23, L has a value of 12, E has a value of 5, D has a value of 4, G has a value of 7, and E has a value of 5. So when you total it, it equals 96. Hard work. Now talking about hard work, H has a value of 8, A has a value of 1, R has a value of 18, D has a value of 4, W is 23, O has a value of 15, R has a value of 18, K has a value of 11. So hard work is equal to 98. Now let's look at attitude. A has a value of 1, T has a value of 20, again T has a value of 20, I has a value of 9, T has a value of 20, U has a value of 21, D has a value of 4, E has a value of 5, and that equals 100%. So when you see at skills, knowledge, hard work and attitude, the most important thing is attitude. So that shows the real
significance of attitude in comparison of skills, knowledge and hard work. The things inside us that make us go up or down is called attitude. Now, what are those things inside us? Like motivation, your perception, your thinking, the way you think about yourself. So if you think you can do this thing, I can guarantee you that you will do your best. And if you think you can't do this thing, you will go down, your morale will go down. So having a positive perception can take you up, and having a negative perception can take you down. Success of an individual, organization or a country depends on the quality of the people, and the quality comes from their attitude. Now, किसी भी इंडिविजुअल की सक्सेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और किसी भी कंट्री की सक्सेस, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ पीपल, कि वो लोग किस क्वालिटी के हैं, और क्वालिटी आती है उनके एटीट्यूड से. लाइक फॉर एग्जांपल, ओवरऑल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनका एटीट्यूड क्या है, इंडिविजुअल्स का क्या एटीट्यूड है, ग्रुप्स का क्या एटीट्यूड है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या एटीट्यूड है, पूरी कौम का क्या एटीट्यूड है. और यही चीजें इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को और कंट्रीज को बहुत ऊंचाई की तरफ भी लेके जाती हैं, और यही चीजें अगर नेगेटिव साइड भी हो एटीट्यूड तो डिक्लाइन की तरफ लेके जाती है. इंडिविजुअल विद बेटर एटीट्यूड would be better person, which would cut down negativity. Now, किसी भी इंडिविजुअल का बेटर एटीट्यूड उसको एक बेटर पर्सन बना सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जितना आप अपनी इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करेंगे, द मोर केयरिंग यू आर, तो आप लोगों की केयर करेंगे. आपकी हमेशा ये कोशिश होगी कि यू बिकम हेल्पिंग हैंड, आपका एक हेल्पिंग एटीट्यूड होगा, तो डेफिनेटली यू बिकम ए बेटर पर्सन. और किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि वो लोगों की हेल्प करने में उसका इंटरेस्ट ज्यादा है या अपने पर्सनल गेन्स में उसका इंटरेस्ट ज्यादा है. टॉकिंग अबाउट एटीट्यूड, ह्यूमन बीइंग्स कैन alter their lives by altering their attitudes of mind. ह्यूमन बीइंग्स अपनी लाइफ को टोटल चेंज कर सकते हैं by bringing changes in their attitudes of mind. आप अपनी थिंकिंग को, अपनी परसेप्शन को चेंज करके आप अपनी लाइफ्स को चेंज कर सकते हैं. सो एक ऑर्गेनाइजेशन जो लॉस में जा रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन को आप सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं इफ यू चेंज योर एटीट्यूड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. इंडिविजुअल्स जो हैं अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट एटीट्यूड. अक़वाम, मुख्तलिफ कौमें अपने आप को बुलंदी की तरफ लेके जा सकती हैं with the help of right attitude. Think, can a student, parent, teacher, salesman, executive, employer, employee be good in their role without good attitude? Of course no.
हैविंग गुड एटीट्यूड इज मैंडेटरी। चाहे आप किसी की भी बात कर लें, चाहे आप दुनिया में किसी भी रोल की बात कर लें, एटीट्यूड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो एग्जांपल्स हमने यहां पे दी, टीचर, पेरेंट्स, सेल्समैन, एग्जीक्यूटिव, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट की यहां बात करना चाहेंगे कि स्टूडेंट का जब तक अपनी स्टडीज में, अपनी लर्निंग में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो स्टूडेंट कैसे ग्रो करेगा, वो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। सो लर्निंग विदाउट पॉजिटिव एटीट्यूड इज नॉट पॉसिबल। तो अपनी स्टडीज में, फिर अपने करियर में, अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाने के लिए राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड इज मैंडेटरी। Just like buildings stands on a strong foundation, so does success. And the foundation of success is attitude. किसी भी बिल्डिंग को जब आप देखते हैं तो वो अपनी बुनियादों पे खड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, घर तामीर होता है, कोई बिल्डिंग तामीर होती है, तो सबसे पहले उसकी बुनियादें डाली जाती हैं, उसकी एक बेस डेवलप की जाती है, एक फाउंडेशन डेवलप की जाती है। और किसी भी ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, उसकी मजबूती का, उसकी पर्सनालिटी का, उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस का, उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी जो बुनियाद है, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। बी अ बेटर पर्सन, इट वुड ऑटोमेटिकली गिव यू बेटर ब्रेन, एंड बेटर ब्रेन makes a man successful. आप अभी से राइट नाउ अपने एटीट्यूड को मजीद पॉजिटिव करें एंड यू विल फील मच बेटर, यू विल फील मोर कंफर्टेबल, you will feel easy here, and then of course automatically your brain will become much better, and of course a better brain can give you better results. Foundation of success regardless of your chosen field is attitude. Now talking about attitudes and change relationship. People build up attitudes which fit their needs and values as they perceive them to be. So these are the three aspects of attitude: cognitive, affective, behavioral. Now what is cognitive aspect of attitude? Cognitive means what a person knows about the situation. कि एक पर्सन को सिचुएशन के बारे में कितना मालूम है, उसकी अवेयरनेस कितनी है. Now किसी भी सिचुएशन के बारे में आपको जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतना ही आपका एटीट्यूड उसके मुताबिक होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पूरी सिचुएशन का नहीं पता तो आपका एटीट्यूड नेगेटिव होने के चांसेस हैं, और आपको जितनी ज्यादा अवेयरनेस है आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होने के उतने ज्यादा चांसेस हैं. इफेक्टिव, हाउ द पर्सन फील्स अबाउट इट. आपकी रिलेशनशिप, आपकी उस सिचुएशन के साथ आपकी फीलिंग्स क्या हैं, और जितनी ज्यादा आपकी फीलिंग स्ट्रांग होंगी उतना ही ज्यादा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड उसमें होने के चांसेस हैं. बिहेवियरल, हाउ द पर्सन रिएक्ट्स. किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इवेंट में आप किस तरह रिएक्ट करते हैं, दैट आल्सो शोज योर एटीट्यूड. सो इन तीन चीजों से आपका एटीट्यूड डेवलप हो रहा है: कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल. Now factors that determine our attitude. The most important factor is the environment.
नाउ environment means internal and external environment कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा environment है, विद इन द ऑफिस तमाम एम्प्लॉइज आपस में किस तरह उनका एक दूसरे के साथ एटीट्यूड है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशनल प्रेमिसेस किस तरह का माहौल है, किस तरह का एनवायरनमेंट है। सो इन तमाम दोनों चीजों को सामने रख के आपका एटीट्यूड एक डेवलप होता है ओवरऑल। एक्सपीरियंस विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो जो आपका एक्सपीरियंस बढ़ना शुरू होता है वैसे वैसे आपके एप्टीट्यूड में, आपके एटीट्यूड में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। सो जो लोग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनका एक एटीट्यूड जो है वो ज्यादा मैच्योरिटी उसमें आती है, और जो लोग इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं तो उनको कुछ टाइम लगता है मैच्योरिटी लेने में। एजुकेशन, of course the more education you have, the more qualification you have, that strengthens and that builds your attitude. So these are the factors: environment, including external and internal environment, your experience and your education. So all these factors determines our attitude. Now talking about the types of attitude, we have two major types: positive attitude and negative attitude. Now, positive attitude means that you have a positive thinking. आपकी एक अच्छी नीयत है. And negative attitude means that you have a negative thinking. आपकी नीयत जो है वो नेगेटिव है, मनफी है. Now talking about the benefits of positive attitude, there are so many benefits. I have listed only few. The first one is positive attitude increases productivity of an organization. Of course, जब आप एक positive attitude के साथ, एक positive thinking के साथ आप जब अपनी efforts put in करते हैं तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि आप अपनी नए नए मेथड्स को आप कोशिश कर रहे हैं अप्लाई करने की, आप अपनी वर्किंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी नीयत है, आपकी थिंकिंग ये है कि मैंने बेहतर से बेहतर काम करना है, तो ऑफ कोर्स एज ए रिजल्ट ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस. अनदर बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड इज फॉस्टर टीम वर्क. एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होती है टीम मेंबर्स में, एक दूसरे के साथ मिलके वो बेहतर परफॉर्म करते हैं. जैसे हम कहते हैं कि 1 और 1 11. सॉल्व्स प्रॉब्लम्स. यू नो, जब भी किसी वर्किंग प्लेस की आप बात करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी. तो विद द राइट पॉजिटिव एटीट्यूड people solve their problems quickly. They manage their problems because they understand each other's point of view with the positive attitude. Improves quality. Of course, जब आपका attitude positive होगा, आप दिल लगा के काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे और क्वालिटी इंप्रूव होगी. और जो लोग जिनकी मोटिवेशन कम होती है या जो दिल लगा के काम नहीं करते या एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो उतनी क्वालिटी नहीं दे सकते. इंक्रीजेस प्रॉफिट्स. ऑफ कोर्स जैसे हमने बात की प्रोडक्टिविटी की, क्वालिटी की, टीम वर्क की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो इन तमाम चीजों की मदद से आई थिंक कि दिस फैक्ट इज वेरी सिंपल दैट it will increase the overall profitability of the organization, क्योंकि आपका जो रियल फोकस है वो कस्टमर है. और जब आप कस्टमर को सामने रख के एक क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं तो डेफिनेटली you will have
more customers and your customers will become loyal customers. और loyal customers जो हैं, you know, they become your regular buyers. The regular buyers increases your profitability, reduces stress. Of course, जो लोग पॉजिटिव जिनकी थिंकिंग होती है उनकी स्ट्रेस जो है वो मॉडरेट लेवल पे आ जाती है, मीनिंग दैट कि दे आर कंफर्टेबल. और जो लोग हर वक्त नेगेटिव बातें करते रहते हैं उनकी नेगेटिव थिंकिंग होती है, सो दे आर ऑलवेज इन हाई स्ट्रेस. हेल्प्स अ पर्सन बिकम contributing member of a family and society, becomes an asset to their country. Of course, जब आप एक राइट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, अपने मुल्क में, आपका एक कंट्रीब्यूशन है. एंड फाइनली अबव ऑल मेक्स अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट कि जिन लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उनकी पर्सनैलिटी बहुत मुतासिर कुन होती है. लोग उनकी तारीफ करते हैं, लोग उनको बहुत प्रेज करते हैं, लोग उनको एज ए रोल मॉडल लेके चलते हैं, उनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है. सो हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड हैज वंडरफुल lot of benefits, and we have discussed only few here. Now let us talk about the consequences of negative attitude. कि जिन लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड होता है तो उनको क्या उसके नुकसानात होते हैं. दे हैव ए पर्पसलेस लाइफ. उनकी जिंदगी का कोई खास मकसद नहीं होता सवाई ये कि लोगों को नुकसान पहुंचाना, लोगों को तंग करना, लोगों को मुसीबत में डालना. बट जब इन रियलिटी जब आप देखते हैं तो उनका एक पर्पसलेस लाइफ होती है. इल हेल्थ. ऑफ कोर्स जब आप एक जो लोग नेगेटिव एटीट्यूड के साथ ऑफिस में काम करते हैं अक्सर औकात वो बीमार हो जाते हैं. क्योंकि जब आप बहुत नेगेटिव कोई सोचना शुरू करता है तो उसका एक इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट उसकी हेल्थ पे भी होता है. हाई स्ट्रेस लेवल फॉर हिमसेल्फ, हरसेल्फ और फॉर अदर्स. अपने लिए और दूसरों के लिए एक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, और जब अपने और दूसरों के लिए स्ट्रेस क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस विल डिक्लाइन. Create negative environment at home and workplace and become a liability to society. घर में और ऑफिस में वो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और वो एक लायबिलिटी बन जाते हैं सोसाइटी की. लोग उनसे नाखुश रहते हैं और अक्सर औकात ये देखा गया कि लोग उनसे जान छुड़ाने की बात करते हैं. क्या आपको पता होता है कि ये पर्सन जो है इसका नेगेटिव एटीट्यूड है, तो आप कहते हैं कि किसी तरह मैं इसके साथ ना बैठूं, इससे बात ना करूं, क्योंकि जो ही मैंने बात की तो ये नेगेटिव डिस्कशन शुरू कर देगा. तो इसकी वजह से ये एक लायबिलिटी बन जाते हैं सोसाइटी के लिए, एक बोझ बन जाते हैं. Now, what are the steps for building positive attitude? If we want to build and maintain positive attitude, we need to continuously practice the following steps. And the first most important step is change focus. Look for the positive. Very important. पॉजिटिव चीजों को देखें बजाय नेगेटिव चीजों को देखने के. मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ. अक्सर ये देखा गया कि जब भी कोई काम ऑफिस में जब किसी को दिया जाता है तो एक नॉर्मल एक जो एक रिस्पांस खास तौर पे पब्लिक सेक्टर में देखा गया कि हम कहते हैं कि ये काम हम कल कर लेंगे. ये भी एक तरह का नेगेटिव एटीट्यूड है. सो अपनी एक हैबिट बनाएं, डूइंग इट नाउ.
जो काम आपको जिस वक्त दिया जाए आप उसके ऊपर उसी वक्त वर्किंग शुरू कर दें। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ एप्रिसिएशन, लोगों की आप तारीफ करें बजाय ये कि आप ये चाहें कि लोग आपकी तारीफ करें। इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप लोगों की तारीफ करें। जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो लोग स्मार्ट वर्कर्स हैं, आप उनके काम की तारीफ करें। लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन एंड देन स्टार्ट योर डे विद अ पॉजिटिव थॉट थिंग। और हर सुबह का आगाज, अपने हर दिन का आगाज एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ शुरू करें। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स फॉर बिल्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड वंस यू स्टार्ट adopting and when you start implementing these steps, you will feel that you will develop a stronger, much stronger positive attitude. Be optimist. Be so strong that nothing can disturb your peace of mind. अपने आप को इतना मजबूत करें कि कोई भी चीज आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब न कर सके। ऑप्टिमिस्टिक हो। सो अपने आप को मजबूत से मजबूत तर करें। टॉक हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी टू एवरी पर्सन यू मीट। कोशिश करें कि जिस भी पर्सन से आप मिलें आप उससे हेल्थ की, हैप्पीनेस की, प्रॉस्पेरिटी की और अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करें। मेक ऑल योर फ्रेंड्स फील देयर इज समथिंग इन देम। अपने तमाम दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, उनको ये फील कराएं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अल्लाह ताला ने उनको बहुत बहुत सलाहितों से नवाजा है। लुक एट द सनी साइड ऑफ एवरीथिंग। ब्राइटर साइड को देखने की आदत डालें, ना कि डार्कर साइड को। अच्छा अच्छा सोचें, बुरा बुरा ना सोचें। थिंक ओनली ऑफ द बेस्ट, work only for the best and expect only the best. Be as enthusiastic about the success of others as you are about your own. तो न सिर्फ ये कि अपनी सक्सेस के बारे में आप बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत इंथुजियास्टिक हैं, यही फीलिंग्स आपकी दूसरों की सक्सेस के बारे में भी होनी चाहिए। तो ये कुछ recommendations हैं that can make you highly optimistic. Forget the mistakes of the past and press on to the greater achievement of the future. पास्ट की मिस्टेक्स को आप भूल जाएं। और यहां पे ये मैं कहना चाहूंगा कि पास्ट से लर्न करने की कोशिश करें and try not to repeat your previous mistakes, और फोकस करें अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को। Give everyone a smile, very important. कहते हैं ना, smile you look better. So give everyone a smile. So definitely इससे दूसरे तो खुश होंगे, आप खुद भी खुश होंगे। और मेडिकल रिसर्च कहती है कि जब हम स्माइल करते हैं so that improves and strengthens our blood. Spend so much time improving yourself that you have no time left to criticize others. Most important advice I can say that this advice is कि अपने ऊपर फोकस करें, अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करें, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करें, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने की बात करें, अपनी क्वालिफिकेशन को, एजुकेशन को, लर्निंग को इंप्रूव करने की कोशिश करें, ताकि आपके पास टाइम बिल्कुल ना बचे दूसरों को क्रिटिसाइज करने का। बी टू बिग फॉर वरी एंड टू नोबल फॉर एंगर। Do butterflies attack your stomach whenever you are asked to speak before a group?
Can you confidently express your thoughts and ideas? Now this is what happens to most of the people. जब उनको कहा जाता है कि किसी ग्रुप के सामने या स्टेज पे आके वो अपने आइडियाज, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करें, तो उनको एक स्टेज फियर, एक स्टेज फ्राइट उनको हो जाता है. हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस? थिंक पॉजिटिवली अबाउट योर सेल्फ. मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने बारे में बहुत मुस्बत सोचें. सेट रियलिस्टिक गोल्स. सो अनरियलिस्टिक गोल्स आपके नहीं होने चाहिए. गोल्स शुड बी रियलिस्टिक. रिवॉर्ड, प्रेज योर सेल्फ वेन यू डू वेल. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कोई अच्छा काम करता है तो आप उसको गिफ्ट देते हैं. तो जब आप अच्छा काम करते हैं तो वाई नॉट कि आप अपने आप को भी गिफ्ट दें. बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स. अपनी जो आपकी थिंकिंग है, आपकी थॉट्स हैं, उससे आपको अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि यही थॉट्स अगर पॉजिटिव होंगी तो आपको अच्छी साइड पे ले जाएंगी, और अगर यही थॉट्स नेगेटिव होंगी तो आपके ये कैरेक्टर को डैमेज करेंगी. थिंक लॉजिकली अबाउट द सिचुएशन, डोंट रिएक्ट. कोई भी सिचुएशन है उसमें लॉजिकली आप उस सिचुएशन को एनालाइज करें, बजाय ये कि आप इमीडिएटली रिएक्ट करना शुरू कर दें. डू नॉट एट्रीब्यूट योर अचीवमेंट एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स ओनली टू लक. गिव योर सेल्फ क्रेडिट फॉर योर ओन पर्सनल अचीवमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कोशिश ना करते तो आपकी सक्सेस कैसे हो सकती थी, ये भी आपको सोचना चाहिए. टॉकिंग अबाउट द असर्टिवनेस is the ability to communicate your needs, feelings, opinions and beliefs in an open and honest manner without violating the rights of others. So when we talk about aggressiveness and assertiveness, it is not the same. Assertiveness produces positive outcomes, whereas aggressive acts result in negative outcomes. So you see that assertiveness and that aggressiveness has a big difference. How to be assertive? These are the tips. Be honest and direct about your feelings, needs, beliefs. Express yourself firmly and directly. Be reasonable in your requests. Recognize and respect the rights of those around you. Be aware of body posture, language. Maintain eye contact. Use I statement to express self. Don't let others impose their values, ideas on you. Encourage others to be clear and direct. And finally, take ownership. So whatever decisions you are making, you should own your decisions. You should accept the responsibility. So no one can go back and change a bad beginning. So nobody can go back in the past. But anyone can start now and create a successful ending. तो पास्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पास्ट में जो कुछ हो चुका है उससे लर्न करके हम अपने फ्यूचर को, अपने स्ट्रॉन्ग को, अपने प्रेजेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. Now you know SWOT analysis, strengths, weaknesses, opportunities and threats. So you should keep on doing the SWOT analysis. So talking about time management, time has no holiday, so switch on the best in you. This is really very important, because when we talk about time, some people say that time
flies. So this is a bad news. So what is the good news? The good news is you are the pilot. So we need to do time management in order to be more efficient and effective in our organizations. Now, did any of the following words appear in your definition when we talk about diversity? Different, individual, race, unlike characteristics, diverse, minorities, unique, or variety. So these are the various aspects of diversity: age, race, gender, and culture. So diversity is the art of thinking independently together. According to Malcolm Forbes, many major successful large corporations recruit employees with diverse backgrounds, abilities, and talents, recognizing all individuals as unique. So workforce diversity is strategically a good idea. So when we have persons from different, backgrounds, from different cultures, from different religions, male and female, working together in an organization, that is called a highly diversified workforce, and that can improve the creativity and innovation in an organization. So talking about diversity, it is more than just tolerating differences. It is respecting, appreciating, understanding the different characteristics of individuals. Everyone is unique. So Almighty God has made all human beings unique with wonderful characteristics. So biases are damaging. So it means that on one side we are saying that all human beings are unique, but if we become biased, if we differentiate, if we discriminate between humans, that is not recommended. Discrimination breeds narrow-mindedness, impairs employee morale, strains employee relationships, and of course damages productivity. So not to mention it is illegal and costly in terms of litigation. So we should respect each other. Whether a person belongs to a different country, different culture, different religion, male or female. So talking about different perspectives in diversity, diversity offers many unique perspectives for problem solving, as everybody brings a unique perspective to the table. Discussions, conflicts, and disagreements will often lead to innovation and unique ideas. So here I will re-emphasize that we need to promote positive conflict in our organizations. And how do we develop positive conflict without diversity? So we need to have heterogeneous groups instead of homogeneous groups. So when people from different cultures, race, religion, and male, female, when they are working together in an organization, so they give different ideas because of their different backgrounds, and that enhances the productivity and performance of an organization. Now talking about globalization, diversity in the workplace makes customers feel welcomed and comfortable when they are dealing with an employee from their own culture. I believe that with today's lecture you have learned a lot and about personality and diversity and how these play an important role in development planning and administration. Thank you very much for your kind attention. Khuda Hafiz.